Hi guys, welcome back to my channel. Um, Hi guys, welcome back to my channel. Um, I'm doing it thrice. This is the third time. Okay, sorry. Hi guys, welcome back to my channel. As you can see, I am not feeling my best, and it's okay. It's almost 11:30 a.m. in the morning. I actually thought I'm always here sharing my. Okay, sorry. Cut. I always think that I come here and share my happy parts, my happy days. Oh, today I ate this. Today I'm going to have sushi. Today it's a shoot and this thing is happening. But I never come and share the bad days because I don't know why, but I always think कि अगर you have to be a part of my journey, then you should know me as a person. I always feel that if I want to be on YouTube, I want to be very real with you. That's the reason कि मैं कुछ भी तुम्हें शो करती हूँ, जो भी लिटरली चीज़ें हो रही होती है मैं तुम्हें सब कुछ ही अच्छे से मतलब I don't think before I speak. It's like all candid. But today I haven't vlogged for like 3 days and I haven't been feeling my best past some days and so I was like shit, I'm not vlogging everything. My dad called this morning and he's like Swati tu vlog क्यों नहीं कर रही है and I was like मेरे तो अभी पीछे की कुछ वीडियोस भी है जो मैंने एडिट नहीं किया है. I wasn't feeling well and 11:30 हो गए and so I thought why not also shoot my bad day. It's okay. I mean everybody has bad days, everybody has like crying days and everything. I don't know what to vlog because I won't be doing much today. I feel very anxious. So I thought, maybe I would exercise. तो मैं exercise करने के लिए देखो sitting on a mat. तो मैं mat लाया, मैं सोचा exercise करती हूँ. But then I wasn't feeling well and something in my chest. So I thought कि let's just go to the gym and maybe exercise. But ऐसा भी नहीं हो पा रहा था. I was not feeling very nice. I just needed someone to talk to, just to share my feelings, how I feel maybe. And I didn't know कि मैं किससे बात करूँ. Aksha's not here. He's in Bombay from like past 5 days. उसका एक shoot है and ऐसे. So I called him and I did, and he was in the middle of the shoot and he literally came. I just wrote him that I feel very anxious. तो आया और उसने obviously मुझसे phone पे बात की and I felt a little nicer. But of course he's busy and he's between his takes and everything. So I was like, ये कोई बात नहीं. Okay. What should we talk? The reason that I feel anxious is also a lot of things going in life, general work life, and everything. I worry a lot. छोटी छोटी चीज़ों में I worry. A lot of my payments are pending, and money is not the reason to cry. But it's not about the money. It's about I work so hard. Literally work so hard. When I am on set, it's like I am like the most non-demanding actor. Like I'm a non-demanding actor. I demand for like nothing. If you have a vanity, great. If you don't have a vanity, great. Chai, coffee, I don't need anything. Like literally, just give me water. I'm happy with it and everything. I work so hard. तो मैं अपने पैसे के लिए खुद करना पड़ता है, which is like the worst part. I had the fight with the producer and everything, and he's like, call whoever you want to call and shit. It just makes me so sad. First thing is that मुझे beg करना ही क्यों पड़ रहा है, ठीक है? It's just sad. My room is a mess. I have zero will to clean it. I think of changing and I think that I'll just get up and exercise, do something to make me feel better. But I can't really miss Aksh right now. I mean, yeah, you would say, oh, talk to your parents and everything. वो वीडियो देखेंगे उनको वैसे ही बुरा लगेगा, तो टेंशन हो जाएगी. I tell my parents कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोलेंगे, just leave it. Leave everything that's stressing you out. If money is stressing out, just let it go. Obviously you're gonna earn more money. It's not that I need money right now, but
The only thing that's affecting me, it's my hard-earned money, and I want it. I don't care if it would have been like 10,000 also 5,000, but I would want it because I have earned it. दूसरा पर्सन करता है छोड़ चल स्वातु टेंशन मत ले छोड़ दे, पर ऐसा नहीं होता है. If it would have been like 2,000 rupees, मैं ऐसे होती कि नहीं, मुझे भाई मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, मैंने अपनी मेहनत से, आई वॉन्ट इट. ऑल्सो अक्षय इज नॉट हियर, सो आई रियली डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू. एंड ऑल्सो वी कम फ्रॉम द सेम फील्ड, सो वी अंडरस्टैंड माई बैड डेज. So the first thing that I'm gonna do to make myself better is just clean my room so that I feel nice. बाकी I really don't know if I'll get my payment because मेरे कोई इतनी बड़ी रीच नहीं है. मतलब कोई, मैं किसी को जानती नहीं हूँ. मैं क्या ही उखाड़ लूँगी टाइप्स. All I can do is just message, just please get my payment done. That's it. Wait. Have warm milk with some Bournvita. नीचे गिर गया. Fuck. Shit. माँ रोज हमें बॉर्नविटा वाला दूध देती थी स्कूल के लिए. उठते हुए सबसे पहले दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी यूज्ड टू हैव. और सूखा खाने में भी ऑल्सो आई लव. धूप बहुत अच्छी लगी है. बर्फ़ पड़ने के बाद हमेशा थोड़ा मौसम बेटर हो जाता है और धूप पड़ती है. अब हम वो करेंगे रूम साफ. सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम रूम साफ कर रहे हैं. हेल्प कर रहे हैं शिवाली दी और मयंक. मयंक तो भी एक्टिंग मारने आया क्योंकि मैंने इसको बोला मैं व्लॉग बना रही हूँ. हो गया. थैंक यू आप जा सकते हो. देखो मेरे कपड़ों का ढेर. सो लेट्स जस्ट क्लीन इट. ये मेरी टी शर्ट है. वैसे साक्षी की टी शर्ट है, मैंने साक्षी से मारी, पर ये रात को चमकती है. मेरे पास बचपन में एक और ऐसा हुड था ब्लैक कलर का, बटन्स थे और वो भी रात को चमकते थे. मेरे घर वालों ने मुझे बचपन में काफ़ी अच्छे कपड़े बनाए थे. हम ऐसे सोचते हैं ना अपने बच्चों को, हम क्यों, मैं अपने बच्चों को तो उनको बैगी कूल कपड़े पहनाऊंगी. पर अगर मैं अब से ऐसे सोचूं तो मतलब हमारे घर वालों ने हमारे को बड़े कूल से कपड़े बनाए थे. वो गैलिस वाली पैंट्स ट्राई की, ऐसे हुड्स वगैरह. तो दैट वाज लाइक नाइस. मम्मा पापा सैड अगर आप हो तो आप कैसे खुश हो सकते हो का सबसे फर्स्ट रीजन इज फूड. गुड फूड. छोले, मैंने थोड़ा ये बोल दिया, मुझे भटूरा खाना बहुत ही अनहेल्दी हो जाएगा. And aloo, and also we have green chutney. Yay! After having a bad start of the day, finally one of my parcel is here, जो कि 3 दिन से आ नहीं रहा था. डिलीवरी वाला उस दिन हम घर पे नहीं थे. लिटरली मेरा फोन से 15 मिनट्स ऑफ हुआ था और उसी टाइम वो आया. पूरे दिन में से उसी टाइम उसने मुझे कॉल किया और ऐसे आया. रीअटेम्प्ट के लिए चीज बताऊंगी जो मेरे साथ कल हुई, लाइक उस स्कैम वाली चीज मैं बताऊंगी बिकॉज आई फील कि तुम्हें पता होना चाहिए और मतलब कि क्या हुआ था. पर पहले मैं खाना खा लेती हूँ. हाय, मुझे अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, सो आई फील नाइस. हैड फूड व्हिच वाज अनहेल्दी बट इट्स ओके. आई वांट टू ओपन दिस पार्सल फॉर यू ऑल. इसके लिए ब्रांड कंटेंट बनाना है. तो मैं ब्रांड कंटेंट बनाऊंगी तो तुम लोग वो देखना. तो मैं तुम्हें बता दी मेरे साथ कल क्या स्कैम हुआ था. ये मुझे ब्लू डार्ट से आया था, ठीक है. तो ये ना सैटरडे को डिलीवर हुआ था और मैं ना आ रही थी तो मेरा फ़ोन बंद था क्योंकि मैं फ्लाइट में थी. जैसे ही लैंड किया तो मेरा फ़ोन ऑफ हो गया. देखो क्या होगा, ब्लू डार्ट वाला बंदा आ गया होगा. मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपका प्रोडक्ट कल या परसों आ जाएगा. पर कल संडे था, नेक्स्ट डे संडे था तो आया नहीं. तो मेरे को लगा मे बी संडे को नहीं होता होगा. मैंने फिर मंडे आया. फिर मैंने भैया को कॉल किया तो उन्होंने बोला मेरे पास तो है नहीं, अभी प्रोडक्ट कोई और देगा. ये वो मुझे चाहिए था बिकॉज ब्रांड वो था तो मुझे शूट भी करना है आगे. तो मैंने क्या किया, मैंने उनको कॉल कर दिया. मैंने गूगल से ब्लू डार्ट का नंबर निकाला पर उनका कोई भी नंबर लगा नहीं, ठीक है. मैंने सोचा कि जो ब्लू डार्ट का ऑफिस है मैं कल वहीं पे जाके उसे ले लूँगी. मैं ब्रांड से बात कर लेती हूँ अगर आप अपनी एंड से कर सकते हो. क्योंकि जो ब्लू डार्ट की जो साइट है उस पर ना आ रहा था रीस्केड्यूल करने के लिए, पर वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें वो आता नहीं ADHF वो जो लिखा होता है फिर कट लगा होता है कि वो लिखो. मैं जितनी बार वो लिख रही थी पर मैं नेक्स्ट बटन दबा रही थी तो वो नेक्स्ट मतलब उनका साइट अटक गया था, वो चल ही नहीं रहा था. विद माई फ्रेंड्स एंड आई वाज हैविंग डिनर. तो नहीं एक्चुअली तो ब्रंच मतलब व्हाटएवर, आई वाज हैविंग फूड. तो क्या हुआ, उनका कॉल आया और उनका ब्लू डार्ट वालों का कॉल आया कि मैम आपका ऐसे ऐसे ऐसे. तो आई वाज लाइक हाँ. मैंने बोला हाँ. तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं गूगल पे सर्च कर रही थी, आई थिंक दिस इज इट्स लाइक अ स्कैम कॉल, जो कि मुझे नहीं पता है बिकॉज ही कॉल्ड मी कि आप ब्लू डार्ट से ऐसे. तो उन्होंने बोला आपका रेफरेंस नंबर क्या है. तो मैंने उनको रेफरेंस नंबर दिया. तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके नंबर पे अभी एक लिंक आएगा, आप उसे खोलो और उसमें जो डिटेल आएगी वो भरना. तो आया, लिंक आया. तो मैंने लिंक खोला, ठीक है. तो उसमें लिंक में आया मेरा नाम नंबर लिखने के लिए और सेकंड में आया मेरा UPI पिन डालने के लिए.
Which I was like, बहुत ही ऐसे हेजिटेंट से हो गई कि मैं अपना UPI पिन क्यों शेयर करूँ. मैंने उसको मना कर दिया. मैंने बोला कोई मैं रैंडम बंदा मुझे कॉल कर रहा है और मेरे से UPI पिन मांग, उसमें आ रहा है मैं कि UPI पिन की क्या ज़रूरत है. मैंने बोला कि मैं नहीं वो करूँगी. जबकि ये तो पेड पार्सल है. कि आपका 5 रुपीज़ आपको रीस्केड्यूल करने के लिए आपको 5 रुपीज़ पहले पे करने पड़ेंगे. आप अपने UPI से पे कर सकते हो ऐसे. तो मैंने उसको मना कर दिया. मैंने बोला कि मेरे को नहीं करना है ऐसे से. मैम UPI से क्या होगा अगर UPI पिन शेयर करोगे तो आपका नंबर आपके पास है, आपका फ़ोन आपके पास है, आपको OTP आएगा, ये वो आप मत कहना. तो उसने मुझे ऐसे बोला. इट इज़ वेरी वेरी डम ऑफ मी. तो समवेयर आई डिड गेट मैनिपुलेट एंड आई वाज लाइक कि मेरे पास फ़ोन है, अगर मेरे पास वो आएगा मैं नहीं दूंगी उसको, OTP आएगा तो मैं उसको नहीं दूंगी ऐसे से. तो व्हाट आई डिड वाज मैंने डाल दिया अपना UPI पिन, ठीक है. पर जो वो आई तो इसमें आया ट्रांजैक्शन इन प्रोसेस, तो हुआ नहीं. तो उसने बोला कि मैम आपने कुछ गलत डाला है, वो हुआ नहीं है ऐसे से. तो मेरे को आप फिर से डालो ऐसे से. मेरे को लग गया ये तो कोई वो है. मैंने बोला, मैं उससे लड़ने लगी. मैंने बोला पहली बात तो ऐसा कभी नहीं होता, ब्लू डार्ट से कोई मेरा पहला ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है. मैं क्या, मैं तेरी बात कैसे मानूँ, मैं तुझे बिलीव क्यों करूँ. और मैंने क्या 5 रुपये किस बात के 5 रुपये की तेरे को चाहिए. मैंने बोला तू मेरे को एड्रेस बता, मैं अपना पार्सल खुद जाके ले लूँगी वहाँ से जहाँ पे भी ऑफिस है उसका. तो कहता नहीं, मैम मेरे को मना करने लगा. फिर बोलता कि ठीक है ऐसा करते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ मैं आपका, और आप कैश ऑन डिलीवरी जो आपका प्रोडक्ट आएगा तब 5 रुपये दे देना. मैंने बोला ठीक है परफेक्ट, इससे परफेक्ट क्या हो सकता है, मेरा प्रोडक्ट आएगा मैं तेरे को 5 रुपये उस टाइम दे दूँगी, ठीक है. पर बोलता पर मैम उसके लिए आपको मैं व्हाट्सएप पे एक वो भेजता हूँ, आप उसको वो कर लो. तो मैंने बोला मेरा व्हाट्सएप पे ये नंबर नहीं है. तो उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा, उस पर मुझे भेजा. तो एक कुछ खुला, ठीक है. पहले तो दिस वाज सो स्टूपिड कि इतना बड़ा प्रोसेस उसका होना ही नहीं चाहिए. मैंने अभी तक ये अक्ष को बताया नहीं है. जब वो सुनेगा ना वो मुझे गालियाँ मारेगा, लाइक लिटरली कि मैं कितनी हो, बिकॉज ही वाज सो बिजी. तो मतलब बता ही नहीं पाई उसको, और उसको टेंशन नहीं देना चाहती थी अपनी पहले ही बहुत सारी चीज़ों की. तो बिकॉज आई एम अ क्राई बेबी ना, तो मैं उसके सामने से रोती होती, मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. तो व्हाट्सएप पे उसने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा, ठीक है. मैंने वो डॉक्यूमेंट खोला तो वो ना खुला नहीं, ठीक है. तो मैंने बोला कि तो खुल नहीं रहा है. मैंने कहा ये कोई खुला नहीं है, क्या है ये. तो बोलता कि पहले आपको सेटिंग्स में आप जाओ और ये चेंजेस करो. एंड आई वाज लाइक डोंट टू फोन काट. मैंने कहा ये कोई स्कैम कॉल है. कहता आपने हमें कॉल किया था, आप हमने नहीं, आपने. तो मैंने सोचा मैंने कोई इस नंबर पे कॉल नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक ब्लू डार्ट का वो करी थी जिसपे मैंने, तो उनको पता लग जाता होगा, आई डोंट नो लाइक हाउ, बट स्टिल कि कोई इंसान होता नहीं कि तुम्हें पता लग जाता है कि कोई ये चीज़ ढूंढ रहा है ऐसे स्टाफ. एंड आई वाज लाइक नो डूड. मैंने कहा तू फ़ोन काट. मैंने बोला कि मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को मैं ऑर्डर खुद ले लूँगी, नहीं तो मेरे को चाहिए नहीं, तो फ़ोन काट. तो उसने फ़ोन काटा. एंड आई डायरेक्टली कॉल द ब्रांड कि ऐसा ऐसा सीन है. मैंने कहा देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट, सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन रीस्केड्यूल द थिंग, या फिर मैं खुद जाके ले लेती हूँ ऐसे. बट दे डिड एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज़ हियर. तो अभी बंदा आया था, उसने मुझसे कोई नहीं बोला कि हमें 5 रुपये दो, कुछ नहीं बोला. मेरा एड्रेस मैंने ना पिन डाल दिया था. तो मेरे को इतनी टेंशन थी उस बात की, अलग टेंशन. मतलब मैं इतना last few days have been so hectic, tension, just all anxiety and stuff. एंड मैं बस उसके बारे में सोच रही थी शिट मेरे पैसे ना कट जाए बस. दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांट राइट नाउ. इट वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी. बोलते हैं ना जिस तरीके से, एक तो अगर तुम भोले इंसान हो ना, तुम कहीं ना कहीं ऐसे मैनिपुलेट से हो जाते हो. मैं तो बहुत ही जल्दी मैनिपुलेट हो जाती हूँ. बट स्टिल मैंने उसको बोला, मुझे इतना तो मुझे भी पता लगा कि तो कुछ ज़्यादा ही फिशी है. सो एक्साइटेड. इट्स फ्रॉम कॉस्की. द पैकिंग इज अमेजिंग. वाओ डूड, दिस इज सो प्रिटी. And it has pink as well. It's a pink and a yellow thing. I'm so excited to shoot content in this. तुम देख रहे हो कि हमने ऑलरेडी कपड़े बना दिए और अभी सेटिंग कर, अभी बहुत टाइम लगेगा. The clothes are so fucking good. सोच रही कि पहले सुबह तो इसको डिप्रेशन आ रहा था. चलो यार मेरे साथ अच्छा हो रहा है. थैंक यू भगवान जी. मैं मंदिर भी आने का मेरा बहुत मन है. We all clean the room together और ये सब कुछ कर लिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. एटलीस्ट कपड़े सारे सेट कर दिए. ये मैंने अभी उतारा है क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर जाऊँ, अच्छा सा फील होगा. आई डिडंट गेट ड्रेस्ड. मैंने ये स्वेटर पहनी है, लोअर मेरा सेम ही है, सिर्फ बाल बांध दिए. लेट्स गो. अब जा रहे हैं हम मंदिर. और दी घर जा रहे हैं क्योंकि दी रहते हैं 15 में. एड्रेस नहीं बताऊंगी उनको पूरा, इतना बता सकती हूँ 15 में रहते हैं. दीदी आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं. क्या मैं फील कर सकती हूँ, उनको टच कर सकती हूँ? यार मुझसे कब से आई है. मैंने ये एक्चुअली इंस्टाग्राम पे देखा था. एक लड़के अपनी गर्लफ्रेंड हो गया. मैं कौन से गाने सुनने हैं? मैंने बोला हिंदी में कौन से? सैड. आपकी जिंदगी में क्या दुख है? दुख तो
बहुत है, हैं? बहुत ही ज्यादा। क्या दुख? दुख जरूर, दुखी इंसान नहीं सुनते सैड सॉन्ग। तो बोला अभी तो बोला दुख तो बहुत है। मैंने ऐसे बोल दिया, कोई दुख नहीं है। देखो सन किस्ड। वे मयंक गया है, हम उसका वेट कर रहे हैं। लाइनर पहना है ना तो एक बार समझा। तो मंदिर आ गया फाइनली। ये मेरा फेवरेट मंदिर है। इधर के मंदिर से मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है। तो हमने मंदिर में तो पूजा करती है। अभी हम पेड़ के नीचे बैठेंगे और देखो हमने ये भी लगाया, दिखाओ अपने कान के पीछे, हनुमान भगवान जी का, क्योंकि आज ट्यूसडे है ना इसलिए। हम हमेशा थर्सडे को आते हैं, आज ट्यूसडे को आए हैं इसलिए। एक्चुअली मुझे ना ये पार्ट सबसे अच्छा लगता है मंदिर का। अभी ये ख़राब हो गया है, इनने कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे थे मंदिर की, पर मेरे को हमेशा यहाँ पे आके बैठना और ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे हमेशा दिया जलाते हैं और हम यहाँ पे बैठते हैं, बहुत अच्छा है बैठने के लिए भी। बैठ के बहुत ऐसे पीस सा मिलता है। एक तो शोर नहीं है आसपास, बर्ड्स वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही है ना। अच्छा है ना, अच्छा मंदिर है ना। ये हम तीनों की थी। हमने कृष्ण भगवान जी को फ्लावर भी दिया। गुड बॉय, गुड गर्ल। ये लो। 15 सेक्टर में श्री गणेश साउथ इंडियन फूड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। पहले इन्हें छोटा सा एक स्टॉल टाइप्स होता था, वहाँ बेचते थे और इन्हें सोचा अपनी शॉप खरीद लिया इधर। दीदी ने खाना है लेमन राइस। लेमन राइस। हम खाएंगे राजमा चावल। यू वांट टू हैव राजमा चावल ना? राजमा चावल। चलो फिर लेट्स गो। ये वो 15 वाले फेमस, यार मेरे हाथ पे रख दो, गिर रहा है। 15 वाले फेमस राजमा चावल 50 रुपीज़ के हो गए हाफ। जब मैं खाती थी तो 30 रुपीज़ के हाफ होते थे। आई वांट टू शो यू द शॉप। सेक्सी लग रहा है। मेरा फोन का कैमरा इतना साफ नहीं अभी, बट स्टिल। उन्होंने 2 सेकंड में ऐसे बोला राजमा राइस और डाल दिया, बस उनका बना होगा। आपके आए नहीं? ये खा लो, टेस्ट नहीं। आपके साथ खाएंगे, आपके साथ खाएंगे दीदी। वेलकम बैक टू माय फूड ब्लॉग। बोलते हैं देसी राजमा चावल। दीदी ने मंगाया है लेमन राइस विच इज साउथ इंडियन, और साथ में मंगाई है इन्होंने कॉफी। या लेमन राइस इज साउथ इंडियन है ना। कोर्स आई एम गोना टेक वन बाइट। मैंने कभी लाइफ में लेमन राइस नहीं खाया। अब मेरे से नहीं खाई जा रही है राजमा, तब मैं ये खाऊंगी। मेरा लेमन राइस का रिव्यू है कि मेरे लिए थोड़े तीखे हैं। ऑल्सो आई बिलीव कि मैंने शायद राजमा खाई होगी, थोड़ा डोमिनेटिंग टेस्ट होता है राजमा का, उसकी वजह से लग रहे हो। पर आई थिंक दीज आर टू सिंपल फॉर मी। इसके साथ मिलती नहीं ग्रेवी वगैरह? मिलती में लेनी ना, सांबर में होता है। बस सांबर अभी तो कमी है। हाय जैम, ये हमारी क्यूट जैम। हम तुमको बताना भूल गए, हम बताना भूल गए कि हमने दीदी को ड्रॉप कर दिया है। तो हमने उनको बाय बोल दिया, बट क्योंकि मैं इतने मगनली उनको बाय बोल रही थी कि मैं व्लॉग बनाना भूल गई, और मुझे बहुत ज़ोर से पी आ रही थी, तो मैं उनके घर भी गई वॉशरूम। तो ये सब मैं तुम्हें बताना भूल गई। हाय, so we just came back home. Not just, we actually came back home बहुत पहले, 10 बजने वाले हैं. About to sleep, so I wanted to come here and end the vlog. Also I had water, so I'm happy. इतने दिन से I was not having water अच्छे से, so I had not ज़्यादा 500 ml water. I am feeling better. मुझे ऐसा लगता है जब भी तुम ऐसे थोड़ा सैड सा फील करते हो और लो सा फील करते हो, तो तुम्हें कभी अकेले नहीं रहना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी विद पीपल, एंड तुम्हें ज़्यादा कुछ करना चाहिए. It's quite okay the entire day and everything. I was feeling better. Don't even ask how worst I was feeling, so I'm just happy I chose to vlog today, you know. Being sad is okay, crying is okay, and if also you are feeling like that, it is very important to talk to somebody. And if not, if you're somebody who doesn't want to talk, you can always, I feel you can always write it down, just whatever you feel. And if you're not a person like me who likes to write it down, then probably you can shoot a video. It's like a journal only, a video journal. I think that was it for the video, guys. Thank you so much for watching. I know it wasn't a lot, कुछ था नहीं ज़्यादा, but जो भी था, it's here. I really wanted to just be real out here. And also मैं बड़ी खुश हो रही थी ना कि और मेरे को प्रोडक्ट्स मिल गए, कितने अच्छे हैं ये ऐसे प्रोडक्ट, मुझे वापस करने हो, मतलब बिकॉज ऑल्सो दैट आई एम गेटिंग मनी, तो मतलब कि प्रोडक्ट्स आई हैव टू शूट एंड जस्ट रिटर्न टू द ब्रांड. बट बड़े अच्छे थे वो यार. मैंने सोचा अगर मुझे अब कोई शादी में बुलाएगा, जो कि मुझे नहीं बुलाता है, तो मैं यही पहन के जाऊँगी. ये मेरे शादी का स्टॉक हो गया है. You never know, अगली साल मुझे कोई बुलाए या कुछ भी. So it's it for the video, guys. Thank you so much for watching. Bye, love you.